Hello children, today we will continue our chapter number 2, year to year. Here are a lot of questions, let's discuss it. You might have seen some of the animals given below, यानी कि आपने इन सारे animals को देखा होगा obviously. Fox, elephant, sparrow, pigeon, frog, crow, peacock, pig, mouse, cat, buffalo, duck, hen, camel, lizard, cow. इन सारे एनिमल्स को आपको देखने का मौका मिला होगा. So let's discuss its related questions. Put the names of the animals in the table below. यानी कि आपको नीचे में you have given 4 tables. In this table you have to fill the name of the animals which categorizes these columns, which satisfies these columns. Okay, first a ear can be seen. Here fox, it is a 4-footed animal, its ears can be seen. Okay, and has hair on his skin. Elephant also, fox also. Next a sparrow, pigeon, these are the birds, ears cannot be seen and has feathers on their skin. Frog, its ears cannot be seen. Crow, and frog में आपको yes, no feathers on their skin. Crow has feathers on their skin and ears cannot be seen. Peacock, feathers on his skin and ears cannot be seen. Pig, it is a 4-footed animal, ears can be seen and has hair on their skin. Next one is the mouse. Okay, ears आपको in mouse, yes, ears can be seen and has hair on their body. Cat, ears can be seen and their hair on their body. Buffalo, ears can be seen and also has hair on his skin. Next one is the duck, ears cannot be seen, okay, and has feathers on their skin. Next one is the hen, ears cannot be seen and has feathers on their skin. Camel, it is camel, ears can be seen, it is a 4-footed animal and has hair on their body. Next one is lizard, ears cannot be seen and has no feathers. Next one is the cow, it is a 4-footed animal and has hair on their skin. Okay, moving to the next. In which list did you put the cow and the buffalo? यानी कि आप cow buffalo को किस लिस्ट में डालेंगे? तो ears cannot be seen and has hair on their skin. From a distance, can you see the hair on their skin? Obviously, to some distances we can see the hair on their body, but when you go close to them, you can see the hair on their body. Try to go near one of them. Could you see their hair? यानी कि आपको कह रहा है कि आप उसके पास जा करके देखिए. Obviously, दूर से आपको कम बाल दिखाई देंगे काऊ और बफेलो पे, और जब आप उनके पास जाइएगा तो आपको बाल उनके बॉडी पे नजर आएंगे. If you were to meet an elephant, would you dare to touch it? यानी कि जब आप एलिफेंट से मिलिएगा क्या आप कोशिश कीजिएगा, यानी कि आप हिम्मत कीजिएगा कि आप उसे टच करें. Do you know that an elephant also has hair on his skin? क्या आप जानते हैं कि एलिफेंट के भी बॉडी पर बाल रहते हैं. Obviously, it is. Next. Can you tell which of the animals mentioned in the list lay eggs? Find out and write the names of these animals in the green box. Which of the animals in the list give birth to the babies? Write their names in the red box. यानी कि आपको क्या करना है, जो आपको लिस्ट आपको ऊपर में प्रोवाइड किए गए थे फ्रॉम द लिस्ट, यू हैव टू कैटेगराइज द एनिमल्स. इन द रेड बॉक्स आपको डालना है कि द एनिमल्स विच गिव बर्थ टू द बेबीज, एंड द ग्रीन बॉक्स में आपको डालना है कि द एनिमल्स विच ले एग्स. ओके, so in the red box it will be the name of the animals from the list you can categorize. First one is in the red box you can write deer. Next, cat, buffalo, giraffe, pig, camel, elephant, cow, mouse, fox. In the green box you can write frog, fish, ant, lizard, duck, crow, sparrow. Okay, now look again at the table on the previous page. यानी कि आपको कह रहा है कि प्रीवियस पेज में जो आपने टेबल को अभी फिल किया था उसको आप देखिए. ड्रॉ अ लाइन अंडर द नेम्स ऑफ द एनिमल्स हुज नेम्स आर इन द ग्रीन बॉक्स. यानी कि जो एनिमल्स के नाम ग्रीन बॉक्स में लिखे गए हैं उनको आपको अंडरलाइन करना है. पुट ए सर्कल अराउंड द नेम्स ऑफ दोज विच आर इन द रेड बॉक्स. यानी कि जो एनिमल्स का नाम आपने रेड बॉक्स में लिखा है उसको आपको सर्कल करना है. सो व्हाट डिड यू नोट, यानी कि आपने क्या नोटिस किया.
दोज एनिमल्स हुज ईयर्स यू कैन सी हैव हेयर ऑन देयर बॉडी, यानी कि जिस एनिमल्स के कान आपको दिखाई देते हैं उनके बॉडी पे बाल भी होते हैं. दिस एनिमल्स गिव बर्थ टू द बेबीज, यानी कि जो ये एनिमल है वो अपने जैसे बच्चे को जन्म देते हैं. दोज एनिमल्स दैट डो नॉट हैव ईयर्स ऑन द आउटसाइड, यानी कि वैसे जानवर जिनके कान आप बाहर नहीं दिखाई देते हैं. डो नॉट हैव हेयर ऑन देयर बॉडी, उनके बॉडी पे बाल नहीं होता है. दीज एनिमल्स ले एग्स, ऐसे एनिमल जो है वो क्या करते हैं, अंडे देते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन इज हैव यू सीन एनिमल्स अराउंड योर हाउस और स्कूल दैट हैव स्मॉल बेबीज, क्या आप अपने स्कूल या घर के पास ऐसे एनिमल्स को देखे हैं जिनके छोटे बच्चे होते हैं. राइट देयर नेम्स इन योर नोटबुक, यानी कि उनका नाम लिखना है. ओबियसली आप अपने घर के पास ओबियसली देखेंगे कैट, डॉग हो गया, आपका पिग हो गया, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि हैव यू एवर केप्ट अ पेट, क्या आपने कभी पेट रखा है. ओबियसली समटाइम्स यू माइट हैव केप्ट पेट लाइक रैबिट, कैट, काउ, बुफेलो. डज एनीवन यू नो कीप अ पेट. येस, माय नेबर हैज़ केप्ट अ पेट. यू कैन राइट दिस. फाइंड आउट मोर अबाउट द पेट, यानी कि आपको पेट के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है. जैसे विच एनिमल इज इट, मान लेते हैं कि यू कैन कंसिडर इट एज डॉग, तो यू कैन राइट द एनिमल इज डॉग. सेकेंड क्वेश्चन इज डज इट हैव अ नेम, व्हाट इज इट. येस, इट माइट बी पप्पी, चुन्नू, समथिंग एल्स. हु गेव दिस नेम, यानी कि हु गेव इट दिस नेम, यानी कि किसने ये नाम रखा है, तो इट मे बी देयर ऑनर. नेक्स्ट क्वेश्चन कि व्हाट डज इट लाइक टू ईट, यानी कि उसे क्या खाना पसंद है. द डॉग लाइक टू ईट बिस्किट, मिल्क, मीट, एक्सेट्रा. हाउ मेनी टाइम्स अ डे इज इट गिवन फूड. 3 to 4 times. When does it sleep, for how long does it sleep. It sleeps sometimes in the day and sometimes also in the night, 3 to 4 hours, you can write. नेक्स्ट वन इज देयर एनी स्पेशल वे टू लुक आफ्टर दिस एनिमल. हाउ, क्या आप इस एनिमल को जानते हैं, कोई जो स्पेशल ट्रीटमेंट जिनका इनका ध्यान रखा जाता है. ओबियसली यू गिव देम बाथ, ठीक है, यू गिव देम बाथ, यू गिव देम फूड इन द राइट टाइम. नेक्स्ट क्वेश्चन इज डज इट गेट एंग्री. व्हेन, हाउ डू यू नो इट इज़ एंग्री, यानी कि आपको कैसे पता चलता है कि इसे गुस्सा आ गया है और कब ये गुस्सा आया है, और आपको कैसे पता चल रहा है कि वो गुस्से में है. तो व्हेन इट गेट एंग्री इट स्टार्ट्स बार्किंग. ओके. नेक्स्ट है डज इट हैव हेयर ऑन द और फेदर्स ऑन इट्स स्किन, क्या उसके बॉडी पे बाल होते हैं या फेदर्स होते हैं. तो दे हैव हेयर ऑन देयर स्किन. कैन यू सी इट्स ईयर्स. ओबियसली यू कैन सी इट्स ईयर्स. नेक्स्ट इज इट अ बेबी और अ यंग एनिमल और अ फुल ग्रोन एनिमल. इट इज़ अ बेबी. नेक्स्ट विल दिस पेट एनिमल ले एग्स और गिव बर्थ टू द बेबीज, यानी कि ये जो पेट एनिमल है क्या वो अंडे देते हैं या बेबी को जन्म देते हैं. तो इफ़ इट इज़ डॉग देन इट गिव बर्थ टू द बेबीज. नेक्स्ट वन इज डज इट हैव यंग वंस, क्या इसके छोटे बच्चे होते हैं. यस. नेक्स्ट है कि ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ दिस एनिमल एंड कलर इट, यानी कि आपको एक पेट एनिमल का पिक्चर, यानी कि आपको एक डॉग का पिक्चर ड्रॉ करना है एंड यू हैव टू कलर इट. गिव इट ए नेम ऑफ योर चॉइस, और अपनी मर्जी से इनको कोई नाम भी देना है, आइदर पपी, ठीक है, या टॉमी, यू कैन राइट इट. ओके. नेक्स्ट वन इज लुक एट दिस पिक्चर, आप इस पिक्चर को देखिए. कलर द पार्ट्स विच हैव इवन नंबर्स 2, 4, 6, 8, यानी कि इट इज़ अ पजल पिक्चर एंड यू हैव टू कलर द पोर्शंस in which number is 2, 4, 6, 8 or the number which is divisible by 2, that is even numbers. And what are the even numbers? The numbers which is divisible by 2 and our remainder is 0, that number is called even number. यानी कि आपको वैसे even number को कलर करना है. What do you see, यानी कि आप कलर करने के बाद आपको क्या दिखाई देता है. Find out the name of this animal. When you color it you will find a animal that is dinosaurus. ओके. यू कैन डू इट इन योर बुक, आप इसको बुक में कीजिए. मेनी ईयर्स अगो देर वे डायनासोरस ऑन अर्थ, यानी कि बहुत साल पहले, हज़ारों साल पहले डायनासोरस हमारे अर्थ पे हुआ करता था. बट नॉट एनी मोर, लेकिन अब हमारे अर्थ पे ये डायनासोरस नहीं होते हैं. नाउ वी सी देम इन फिल्म्स, फोटोज़ एंड बुक्स. अब हम इन डायनासोरस को कहाँ देखते हैं, फिल्म्स में देखते हैं, फ़ोटोज़ में देखते हैं, बुक्स में देखते हैं.
फाइंड आउट मोर अबाउट द डायनासोरस एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स, यानी कि कह रहा है क्या कि आप डायनासोरस के बारे में पता कीजिए, ठीक है। तो यू कैन फाइंड कलेक्ट इट्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम द गूगल ऑल्सो। नेक्स्ट है कि हैव यू सीन एनी एनिमल डैट लुक्स अ लिटिल लाइक अ डायनासोरस, यानी कि आपको ऐसा कोई एनिमल है जो डायनासोरस की तरह दिखता है। तो इट इज़ लिजार्ड, लिजार्ड कैन बी सीन इट इज एज डायनासोरस ऑल्सो, ओके। नेक्स्ट वन इज लुक एट दिस एनिमल, यानी कि आप इस एनिमल को देखिए, राइट इज नेम, इट इज टाइगर। डू यू नो दैट इट इज आर नेशनल एनिमल? ऑब्वियसली you must have known that it is our national animal and it is tiger. Where does it live? It live in the forest or national parks, wildlife sanctuaries. The number of this animal are going down in India, यानी कि हमारे देश में टाइगर की संख्या घटती जा रही है। Discuss why this could be happening, ऐसा क्यों हो रहा है? Due to lack of proper care, due to infectious diseases, these animals are the number of these animals are going down in India, okay. In the previous time, sometimes it were hunted by the people, so it were also decreasing, but now it is banned and government has made a rule that no one can kill the animals. So due to some infectious diseases, they are dying, okay. My dear students, this is over for today. In the coming video we will continue reading this book and we will start chapter number 3, okay. Goodbye.